Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is operation on large numbers. When we talk about operation on large numbers, we are having addition, subtraction, multiplication, division. So these kinds of operations we are going to do here. So let's see. Here we are having an addition part. So the terms we are going to add here, that is our addends, and what we are having our answer, that is our sum. So let's see what we are having here. Nothing else. Okay, so we are having our exercise. So let's pick question number 1 and third part. So we are going to add these numbers. 9 plus 1, 10 plus 3 is 13, carry 1. This is 5 plus 4, 9, 10, 13, again carry 1. This is 10, 11, 12, 13, 14, 4, carry 1. 7 to 21, then again 2 carry. This is 10, 11, 12, 21, then again 2 carry. Then 5, 6, 7, 8. So we are having this one. So we have to add the same place numbers, what we are having here. So next is question number 2, writing columns and add. Okay, let's pick fifth part. Okay, the first thing we are going to do here is let's arrange them. Just like 8, 7, 6, 2, 8, 9. And we have to arrange in a proper place manner. So second part we are going to write from right to left. So we are having 7, 6, 1, 5, 3, 4 and 6. And this is third one is 9, 0, 9, 3. So we are going to add them. So always remember one thing, you have to arrange the numbers from right to left. Clear? So now we are going to add them. Just like 9 plus 9, 18 plus 7 is 25. 2 carry, 10, 16, 1 carry. This is 10, 11, 12, 13, 3, 1 carry. So here we have 6 to the 12, 13, 14, 15, 5, carry 1, that is 1 and 1. 8 plus 1, 9, 9 and 4 is 13, carry 1 and this is 7. Okay. Now come to our next part. So we are having word problem from addition. So always remember one thing, we have to just find out what we are having in the language of the question, that what the question is saying to us. Let's pick one part from here. Let's use the second part. Okay, here we are having best people visited the handicraft fair on the first day and this people visited on the second day. How many people visited the fair on these 2 days? So they are going to find out the number of people visited in 2 days. So we have to find out the total number of visitors. Okay, so let's write the statement first, that is visitors on first day. That is we are having 2, 5, 6, 7, 2, 1. Then visitors on second day, we are having here that is 0, 5, 1 and this is 1, 6, 3. Okay, now we have to find out the total number of visitors. So we are going to write total visitors on 2 days. So we have to add them. Okay, here we are having 2, 7, 7, 7, 1, carry 1, 6. So we are having 6,17,772 visitors. Okay, now we are having subtraction part. So let's see what we are having here. So subtraction of more than 5 digit numbers is same as 4 or 5 digit numbers. तो देखिए हमें places में subtract करना है, बस यही चीज़ ध्यान रखिए. The subtrahend is the largest number, जिसमें से नंबर subtract करेंगे. किस नंबर को subtract करते हैं, that is minuend and sorry ये गलत हो गया, इसको कट कर देना. ओके, minuend वो बिगर नंबर होगा जिसमें से हम छोटा नंबर माइनस करते हैं. छोटा नंबर
is a subtrahend, that is a smaller number, and जो हमारे पास आंसर आएगा that is a difference. Clear? Okay, तो यहाँ पर तो एग्जाम्पल से गिवन है, चेकिंग है. Okay. Okay, now we are having exercise 3.3. Come to our fifth part. So here we are having 6 minus 8 not possible. Carry here, this is 6 and this is 16. So we are having 8. 6 minus 1 is 5. Again carry, that is 4. That is 18 minus 9 is 9. 4 minus not possible, this is 6 and 14. This is 9. This is 8 and this is 16. This is 9. And again 1 and this is 18, again 9. So this is a subtraction part, and last we are in 1 minus 1 is 0. Clear? So this is how we are going to subtract the numbers. Okay, now you can, okay, here we are having final difference in check the answer. Okay, so let's pick second part. So we have to first arrange them just like 3, 9, 5, 6, 7, 2. And here we are in 1000732. So now we are going to separate them just like 0, and this is 4, and this is 9, 4, 9, and this is 2. This is our difference. Okay, this is our difference. Now we have to do our checking part. In checking part, we have to add these two numbers, and if the sum is equal to the bigger number, then we had done the right subtraction, otherwise our subtraction is wrong. So let's see. It is 1000732, that is 294940. So we have to add them. So this is 2, 7, 16, carry 1. This is 5, and this is 0, carry 1, 2, 3, 4. Sorry. This is a mistake. So here we are having 9 and this is 3. Okay, so we have done the checking part also. Now come to our next part. So we are having word problems. So let's see what we are having. Question. Okay, here we are having question. Let's see the question first. A farmer deposited this amount in his bank, and after 3 months he withdrew this amount from it. How much money is left? When we are having leftover parts, then we are going to do the subtraction part. Clear? Always remember this thing. So let's write the statement first. So, okay. Money deposited by farmer. Okay. Here we are having, that is 675,297. Okay. Next is money withdrew by farm. So that is, we are having 621058. Okay, now we are going to find out money left in account. So to find out the remaining amount, we are going to subtract these two values. So here we are having 17, then minus 8, 9. Then here we are having 8 minus 5 is 3. This is 2. This is 4. This is 5 and 0. So he is having 54,239 rupees in his account. Clear? Okay, next concept is of multiplication. Okay, come to our next part. Okay, here we are having some
concept of multiplication, the see the first point, the product of two numbers does not change when the order of numbers change. आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, आगे पीछे कुछ भी लिख लीजिए, आप ऑर्डर चेंज रहेगा. सेम विद द थ्री, डज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर इज चेंज. अब देखिए यहाँ पे हमने अलग ग्रुप बनाया, यहाँ पे अलग ग्रुप बनाया, यहाँ पे अलग ग्रुप बनाया, बट तीनों ही केसेस में हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ. अगर आप इसी नंबर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर क्या आएगा? सेम आएगा. देन द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो. यहाँ पर देखिए, ठीक है. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बाय, ओके, अगर आपसे कोई बोले कि आप मल्टीप्लाई करनी है 1000, 10,000 या जो भी जीरो की वैल्यू 10 के मल्टीपल्स हो, आपको यानी जो भी नंबर आप गिवन हो उसकी उस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, उस डायरेक्ट जीरोस ऐड करनी है. ठीक है, ओके. तो और तो कुछ नहीं है यहाँ पर, आगे चलते हैं. ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट. ओके, तो हम यहाँ से देख ले 6 पार्ट. तभी आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स होंगे तो आप सीधा क्या करेंगे? बस जीरो ऐड करेंगे. जस्ट लाइक 29753. यहाँ पे कितनी जीरोस हैं? 3. तो 1 2 3. अब देखिए आप किसी भी नंबर के से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आंसर आएगा, फिर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा? जीरो. क्लियर? चलिए उसके बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हम. अब यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट. चलिए इसको अरेंज ही कर लेते हैं नॉर्मल. जस्ट लाइक 2967 मल्टीप्लाई बाय 209. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? 9 की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, फिर 0 की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे एंड 2 की मल्टीप्लाई सबसे, फिर सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. ऐसा आप लोगों ने पहले भी करा है. 7 9 63, दैट इज 6. 9 6 54, दैट इज 6 60. 6 carry, 9 is 81, 8 is 7, then 8 carry, 9 2 is 18, 18 plus 8, 18 plus 8, that is 26. Okay, now we have to put 0 for the ones place क्योंकि अब हम tens place number की multiply करेंगे. ओके, तो चलिए इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं. ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं 0 पर 0 7 0 0 0. तो 4 चारों से मल्टीप्लाई करा 0 आ गया. अभी 100 प्लेस पर है तो वंस और टेंस प्लेस के लिए 0 पुट करेंगे. 7 2 is 14, carry 1 6 to 12, 13 3, carry 1 at 13 19, carry 1 2 to the 4 and this is 5. क्लियर? चलिए अब इनको यहाँ पर ऐड करेंगे. दिस इज 3, दिस इज 0 1, दिस इज 0, carry 1 6. ओके, तो ये हो गया 60, आई थिंक 6,20,103. क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास. ओके, इनकी मल्टीप्लाई तो आप अरेंज किए कर सकते हैं, ऐसे अभी हमने क्वेश्चंस कर रहे थे, बट उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. फाइंड द प्रोडक्ट एंड राइट द रिजल्ट इन वर्ड्स. ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं थर्ड पार्ट. ओके, तो यहाँ पे लिखा है 545 40 एंड 30. तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, पहले 4 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं एंड 2 जीरोस का अलग ले लेते हैं. या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 4 3 से 12 होते हैं तो 545 इंटू 12 करते हैं पहले. ये हो जाएगा 12 5 60, जैसे 4 2 8 9 10, 10 प्लस 6 is 14, carry 1, तो 10 11, this is 0, then 5 1 the 5 4 and this is 5. इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 0, दिस इज 9, दिस इज 5, दिस इज 6. क्लियर? ओके, तो हमारे पास जो आ गया यहाँ पर दैट इज 545 इंटू 30 इंटू 40 इक्वल्स टू कितना आ गया था? 6590. और कितनी सी पॉइंट है यहाँ पे? 2 0, 1 and 2. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर. तो इस टाइप से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था. ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है. चलिए तो वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ से पिक कर लेते हैं. तो देखिए अभी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं
तो आपको हमेशा लैंग्वेज पे फोकस करना है, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन कब करना है, जब आपको एक का प्राइस गिवन हो, ज़्यादा का पूछा जाए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम क्वेश्चन पे कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉरी ओके, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ पे आते हैं। इंजन पंप्स आउट दस लाख 63,525 लीटर वाटर इन एन आवर। 1 आवर का कैपेसिटी गिवन है। द इंजन रन 7 आवर्स अ डे, तो 7 आवर्स के लिए बोला गया है। एंड हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इफ पंप इन 3 डेज। तो ये 3 डेज और 7 आवर्स का हमें क्या चाहिए, वाटर कैपेसिटी चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। वाटर पंप आउट in 1 hour, that is 63,525 liter. Okay, then water pump out in how many hours? 7 hours. That is 6. Sorry. So this is 7 into 6, 3, 5 to 5. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, this is 3, 7 to the 14, 15, 16, 17. Carry come 7 5 35 36 3 7 से 21 22 23 24 into 7 से 42 43 44। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतने लीटर जो 7 आवर्स में निकलेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इन 3 डेज। ओके, 3 डेज की कैपेसिटी निकालनी है। So let's write here, let us water pumped out in 3 days, 7 hours in a day था ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए। ओके, तो हमें यहाँ पर जो क्वांटिटी मिली है उसके मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। तो दिस विल बिकम 5 3 15, कैरी 1, 7 3 21 22, 6 18 19 20, 4 13 14, 4 3 13, 4 3 12, देन अगेन 30। तो ये हो गया हमारा इतने लीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम दैट। क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन। तो डिवीजन में आप क्या करेंगे, आप ये देखिए आपको कोई भी चीज़ या कोई भी आर्टिकल या कोई भी पार्ट, कोई भी नंबर आपको इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ if dividend is 0, but divisor is non-zero number and the quotient is 0. अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे you will have the answer 0. अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे you will have the same number. अगर आप डिविडेंड एंड डिवाइजर क्या है आपके पास, सेम है, मतलब दोनों ही नंबर सेम है। जिसको आप डिवाइड करें, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 12। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिवाइजर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। तो अगर आप डिवाइजर इंटू क्वेश्चन करेंगे प्लस रिमाइंडर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर सॉल्व। ओके, हमें आता है अपने एक्सरसाइज 3.7 पर, एंड यहाँ पे हमें डिवाइड करने के लिए बोले गया है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे एक फ्रेम सेट करेंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आपको जो कि मतलब 141 एंड 5 3 4 6 2 0 5। ठीक है, तो हमारा एक बेसिक सा रूल है, जो डिजिट हमें गिवन है 3 डिजिट नंबर, तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 डिजिट नंबर ये ना इससे बड़ा होना चाहिए, जो कि है भी। तो अब हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी इक्वल है या इससे थोड़ा सा ही छोटा है, कि अगर हम उसको माइनस करें तो डिवाइजर से कम बचना चाहिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेके जाने वाले हैं। अब देखिए 3 4 टाइम्स करते हैं, 4 टाइम्स 1 4 1, 4 टाइम्स करेंगे, 4 1 4 4 16, कैरी ऑन 4 5 64। ये ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे लेंगे 3 टाइम्स, 3 1 3 4 3 12, कैरी का 1, दिस इज 4। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1। तो देखिए इससे छोटा आ रहा है, इसका मतलब हमने सही नंबर लिया है।
अब उसके बाद यहाँ पर 6 को कैरी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक ऐसा नंबर गैस करना है जिसकी 141 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आ जाए। तो यहाँ पर 8 लिखे, देखिए क्या 8 में 7 लेते हैं, 141 इंटू 7, 7 for 28, 2 80 ले लेते हैं, 8 1 सा 8, 8 7, 8 for 32, 3 और एक आ रहा है 12, तो 7 टाइम्स ही लेना पड़ेगा। चलिए 7 टाइम्स लेते हैं, 7 1 7, 7 for 28, then 2 कैरी, 7 8 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पर 0, दिस इज 2, यहाँ पर भी कितना हो गया 0, दिस इज 1। अब यहाँ से हम क्या कैरी ले लेंगे, यहाँ पर 2, तो चलिए 8 टाइम्स ले लेंगे हम यहाँ पर, 8 1 सा 8, 8 for 32, 3 कैरी, दैट इज 11, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, ओके, यहाँ पर माइनस करेंगे 4, यहाँ पर कितना बचा था 8 माइनस 2 करेंगे दैट इज 6, 2 माइनस 1 इज 1। अब देखिए आई थिंक हमने यहाँ पे नंबर गलत ले लिया क्योंकि डिवाइजर से ज़्यादा आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 9 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो चलिए 9 टाइम्स करते हैं, 9 1 सा 9, 9 4 सा 36, दिस इज 3 एंड दिस इज 12, 1 2 9 6। ओके, वी हैव टू टेक 1 2 9 6, नॉट दिस वन, 1 2 6 9, सॉरी। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 8 माइनस 6 करेंगे दैट इज 2, 23। ओके, नाउ वी कैरी हियर दैट इज 0, so this will be our one time, no, this is 9 and this is one time here, so we are having 141, माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा, चलिए जिसको छोटा कर लेते हैं। ओके, so here we are having 9 and this is 2. Okay, done. Now we have to take 5 here. So let's see what we are having. 6, 7, 7, not possible. 6, we have to take 6 times. 141 into 6. This is 6, 6 for 24. This is 2, 8. So we are having 6 times here. That is 846. Now we are going to subtract these parts. So here we are having 9. 8 minus 4 is 4. 49 as a remainder. Okay. Okay, तो हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं. Okay, so now we are having question number 2. Divide and check your answer. Let's pick this part. Okay, friends. तो चलिए हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं पहले इसको. That is 123. And here we are having 94305. Okay. So we are going to divide it by 8 to the 16, not possible. So we are having 7. 7 3 to 21, this is 2, 7 to the 40, 15, 16, carry 1, 7 1 the 7 and 8. हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ गया हमारे पास 2. Okay, this is 0. Okay, now we are having here 0. Then again 7 times तो नहीं ले सकते, अब हम लेंगे यहाँ पर 6 times. 6 3 is 18, carry 1, 6 2 is 12, 13, carry 1, 6 1 is 6, this is 7. सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, now 8 and this is that. Then again we are going to take 0 here. तो चलिए यहाँ पर हम क्या 820 ले सकते हैं, नहीं, फिर से हमें 6 टाइम्स लेना पड़ेगा. 7 3 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर अगेन कितना आ जाएगा 8, देन यहाँ पर आ जाता है 5, देन फिर से हम क्या करेंगे 6 टाइम्स ही लेंगे, तो 6 टाइम्स विल बी 7 3 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा 8, 87.
क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, चेकिंग पार्ट। चलिए अभी इसको वापस ले लिए, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चेकिंग करने के लिए हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलेंगे। तो हमारे पास दिस आर डिवाइजर, दिस इज आर डिविडेंड, दिस आर क्वोशिएंट एंड दिस आर रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपने डिवाइजर, जो तो हमारे पास 123। क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 7,666। ओके, देन रिमाइंडर प्लस करेंगे तो दैट इज 87। ठीक है, तो ये हमारा डिविडेंड इक्वल आना चाहिए। तो अभी चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। अभी ऐसा लगे हमने चीटिंग करी है तो ओके। तो यहाँ पर आते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता ही है, हम वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे, इस बार हम डायरेक्ट कर देते हैं। सो हियर वी आर हैविंग 123 इंटू 7,666। सो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 942,918। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 87 और ऐड करना है, प्लस कर लेते हैं हम 87। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 943,005। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा 943,005, डी हमारा डिविडेंड के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमने आंसर सही डिवाइड किया है। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, तो आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए हैं डिवीजन में। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 3.8 एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, जब भी या तो आपके पास सेम नंबर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट हो, या फिर हमसे एक यूनिट की वैल्यू कुछ चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, डिवीजन। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या गिवन है। एन इंजन पंप्स 120 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, ओके, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पंप टू 24,000 लीटर ऑफ वाटर। ओके, तो हम हमारे पास टोटल क्वांटिटी गिवन है, पर मिनट क्वांटिटी गिवन है, तो हमें टाइम निकालना है। सो लेट्स सी, वी आर हैविंग टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना है, दैट इज 24,000 ऑफ लीटर्स। ओके, दैट इज वाटर पम्प्स आउट इन 1 minute, that is 120 liter. So we have to find out the time taken to pump out 24,000 लीटर इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर, 24,000 लीटर divided by 120 liter. So this will become 200 minutes. Clear? So this is our answer. Okay students, now we are having number patterns. Okay, तो नंबर पैटर्न्स में हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, जिसमें हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ स्क्वायर, जस्ट लाइक 2 स्क्वायर, यहाँ पे 4 6। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे बार क्या कर रहे हैं, 2 2 ऐड कर रहे हैं अपने नॉर्मल पार्ट्स में। ठीक है,
देन यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन, जस्ट लाइक नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स 1, 2.6 1 बन सकता है, 3 से 3, 4 से 6, 5 से 10। तो हम हर बार क्या करते आ रहे हैं, 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + 5 + 3 + 4 + 5। देखिए हो गया, पैटर्न हो गया कि इस टाइप से हम यहाँ पर देखते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, तो चलिए इसी टाइप के यहाँ पर पैटर्न्स बने हुए हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे पास अभी एक्सरसाइज दैट इज 3.9 एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए तो 1 5 1 × 5 5 5 × 5 25। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई कर, बस 6 to 5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 = 25, 5 कैरी 1, 5 2 = 10, 11 12 एंड 3 1 2 5। अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 3 1 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, 5 5 25, दिस इज 2, 5 2 10 11 12, कैरी 1, 5 5 6 एंड 5 3 = 15। दिस इज 1 5 6 2 5। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। इस टाइप के आपके पास सारे पैटर्न्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे थर्ड पार्ट पर, तो देखिए यहाँ पे 0 8 1 8 8 एंड 2 8 8 3 4 times 8, यहाँ पर 4 5 times 8 एंड यहाँ 5 करेंगे यहाँ पे 6 times 8। तो ये सब आपके पैटर्न्स इसी टाइप से काम करेंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये सारे आंसर अच्छे से क्लियर हुए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। नाउ यू ऑल हैव टू डू इज प्रैक्टिस एंड सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट।